disabled. I'll just see हाँ. why this. I don't know. Host settings change हो गया है PTG. That's why maybe people aren't able to join. देखिए समीरा जी, I No, changed the still, setting. no, still it's disabled. I just changed the setting. Just try it once again because, Okay. yeah, now I can. Yeah, हो yeah. गया ना? हाँ. Yeah, yeah. Yeah. Okay, so can you see my screen? Just guide me a bit because last week also I had a session and अच्छा एक Not minute. yet. Yeah. Now? अभी शुरू हो रहा है. हो गया? Okay. Buffering. Yeah, now I can see. Because last week also I had a session and I had a great difficulty in just uploading this thing, but I think now you can see Now it, it's na? visible. You ठीक can है, just put ठीक it in the presentation mode. presentation form, yeah. Okay. हाँ जी, अभी clear है एकदम. Wait. अरे यार मेरा पूरा screen now. How to take it to the next slide, Yogini? I cursor, can't see. left, हाँ हो गया. देखिए, you just have to press that arrows, आगे वाला अच्छा arrow. तो आगे वाला arrow. हाँ, ये यहाँ पे आपको दिख रहा है वो नीचे. हाँ. So there are arrows when you enlarge the screen ना. Niche at the bottom there are arrows, or even if you on your keyboard, if you just press that अच्छा next ठीक है वाला ठीक है, arrow, I'll do it from ठीक है. yeah, वो भी हो जाता है. Okay, चलो. हाँ जी. So, welcome everyone for today's session, and the topic for today's session is compliances and certifications. I mean, the kind of licenses, registrations, and permissions required to set up a small-scale production unit of enzyme-based cleaners. And before we go ahead, just allow me to introduce myself. I'll take just 2 minutes. So I'm Samira Satija, citizen of Gurgaon and founder of Crockery Bank for Everyone, which is a sustainable alternative to single-use plastics. I'm also a certified professional by CSC to carry out IEC and BCC activities. I'm cautious about issues like environment protection, environment conservation, waste management, water management, and sustainable and chemical-free lifestyle. I've been making, using, teaching, promoting, endorsing Bioenzyme for the last 6-7 years. Other than that, I'm working as a technical expert and helping various companies, NGOs, and agencies to set up production unit of enzyme-based products under their skill development and livelihood programs. I'm Haryana State President, Bioenzyme Council, formed by Vicky. I am also associated as sustainability consultant with Asset Trust, which is meant to promote upcycling and repurposing of fabric and textile leftover. So now, before we proceed ahead, just a quick definition of what is enzyme-based cleaner. So an enzyme-based cleaner is any cleaning agent that uses biological methods to digest organic waste, stains, molds, or odor. Enzyme-based cleaners use non-pathogenic bacteria to speed up the natural process of breaking down organic waste by acting as a catalyst. Now, coming to the main topic of today's session, the licenses, certification, and registration required for setting up small-scale production unit. And there is a happy news that you don't need any license if you are claiming your product as cleaner or natural or handmade or the mixed of these three, these three nomenclatures. I mean, you can use natural cleaners, you can use handmade cleaners, you can use multi-purpose cleaners, but the words should be these only: cleaners, natural, and handmade. Let me just finish the whole PPT, and if you have any questions, we can take the question after the completion of this PPT. So you don't need any license if you are claiming your product as just cleaners, natural cleaners, or handmade cleaners. In pursuance of Water Act 1974 and Air Act 1981,
CPCB has made uniform classification of industries under red, orange, green, and white category, depending upon their nature of functions and potential to cause air and water pollution. So industries falling under white categories are entirely safe and do not require any license from CPCB. So industry under green categories need to apply application for consent to establish and consent to operate for pollution control licenses. In nutshell, if you are not discharging any waste into the water, you are not supposed to apply for any license. So technically, our production unit of bioenzyme, if you are not discharging any kind of waste into the water, so you don't need any kind of license from the pollution control board also. So technically, no license is required. Now, uh, just just give me a. Okay. So MSME registration is suggested, although it is not mandatory, but it is suggested. It is commonly called Udyam registration. It is not mandatory for MSMEs to obtain this registration, but it is beneficial to get one's business registered under this because it provides a lot of benefit in terms of taxation, setting up the business, credit facilities, loans from the government and the banks, etc. Individuals, startups, business owners, and entrepreneurs, sole proprietorships, self-help groups, cooperative societies, trusts can also apply for registration. So, if you are setting up this production unit as an individual or under startup or as a entrepreneurship or maybe company under section 18 section 8 or self-help group or cooperative society, you can apply for this kind of registration, MSME registration. So MSME registration is free. There is no charges for applying for the registration, but you need these kind of documents before applying. So you need to have PAN for the business you are starting in and current bank account for the business you are starting in the name of the business you are starting. I mean, what is your brand name, registered address, name of the venture. So your PAN number, your current bank account number should be on the name of the venture only. GST registration is optional if the annual turnover is not more than 40 lakhs. So again, GST registration is not mandatory, but it is suggested, it is recommended to get the GST registration because once you get involved with companies or the corporates, normally they buy products or they get associated with the ventures who have GST registration. So it is always recommended to have GST registration. There are no charges. Again, there are no charges to apply for GST registration. Now, there is one that is called GEM registration portal. So GEM is government-owned public procurement portal for procurement of goods and services for all the state and central government departments, ministries, public sector units, etc. So it's always beneficial to register for the GEM portal because you can upload your products on this portal and then you can attract government departments or the POCs to buy your products because normally the state government and the central government departments, they buy the products from the GEM portal only. They don't buy it from the open market. So again, there are no charges to apply under this portal. But if you have appointed a consultant or an agent who is registering on your behalf, you will have to pay their consultancy fee. I'm telling you because normally I mean, people don't know while they go for the registration, and then later they got to know that they have mistakenly opted for a consultant and then they have to pay the charges. So just make sure that you don't opt for any consultant if you are going for the registration. If by chance you have opted for the consultant, then you have to pay for the charges. So just make sure you don't opt for the consultant if you don't want to pay anything. Okay. So no legal requirement for any testing in case the product is for cleaning purposes, though it is advisable to get antimicrobial or antibacterial tests. Such tests should be done by any lab accredited by NABL. So NABL is a government regulatory body. So you have to get your test done from any lab which is registered under NABL.
trademark registration to protect your brand image. I mean, these are suggestive things. These are recommended, though not mandatory. Different types of entities to start any commercial activities. So you can start your venture under proprietorship, under private limited, as I told you, company under the Company Act, Section 8 companies, self-help group, trust, society, cooperative, and there is this new term FPO, not new term, but yeah, relatively new, FPO, Farmers Producers Organization. And lastly, symbols and logos to be projected on the label. Make in India logo can be used only after taking permission from the Department of Industrial Policy and Promotion. Normally, people don't take any kind of permission, so it's okay. But yeah, legally, you are not permitted to use this logo. So it's better to take the permission. It's a simple process. You can take the permission from this department. Vocal for local is available for anyone to use. You can use vocal for local without, going for any legal compliances. Swachh Bharat logo can be used only after taking necessary approval and license from Ministry of Housing and Urban Affairs. Normally, also no, people use Swachh Bharat logo, so nobody just normally bothers. But as per the rules, as per the laws, these are the things. I mean, these two, the Make in India logo and Swachh Bharat logo, you have to take the permission from the concerned ministries and the departments. Vocal for local, you can just go away without taking any permission. So this is just for the knowledge. Although people use Make in India logo, people use Swachh Bharat logo without taking any permission. Nobody cares. But yeah, this is for the knowledge, and this is this is how it is. So that's all about this thing. Now I open the, there are so many things to share, but I leave it to you if you have any question. So it's better I take your question and then reply it, because otherwise it's a huge subject. I can go on and on. I'm not necessarily be covering your questions. So it's better to, invite questions from you. So that's all from my side. Now you can open the platform for the participants to ask the questions. Yeah. समीरा जी, जेम पोर्टल पे रजिस्टर करने के लिए मतलब कुछ ऐसा है कि मिनिमम इतने ईयर ओल्ड होनी चाहिए? जैसे अगर कोई फ्रेशर है, जैसे मैंने अभी लॉन्च करना है, तो मैं अभी अप्लाई कर सकती हूँ, या थोड़ा 1 साल का ऐसा कुछ है क्या उसमें? नहीं, आई थिंक आपकी अगर एक रिटर्न चली गई होती है, जीएसटी की रिटर्न जा चुकी होती है, देन यू कैन अप्लाई। मतलब 1-2 महीने बाद? हाँ हाँ हाँ, एक रिटर्न फर्स्ट क्वार्टर की अगर रिटर्न चली जाती है तो यू कैन अप्लाई, because there is quarterly return of GST. Once you take the GST number, you have to file this quarterly return. और जो आप बोल रहे हो कि वो सर्टिफिकेट के से मतलब नहीं जरूरत, लेकिन वही ना, मार्केट में जाओ तो मार्केट में जाने के लिए, हाँ, जब भी आप मार्केट में जाते हो, अपने आप को मार्केट में पूरा वो करते हो, एक्सपोज करते हो, तो जीएसटी इज ऑलवेज रिकमेंडेड। बिकॉज होता क्या है कि कोई भी कंपनी जो कि बड़ी कंपनी है, जो भी अपना ऑफिशियल रूट से आएगी, वो हमेशा आपसे जीएसटी मांगेगी। सो ऑल्दो लीगल कंप्लायंसेस या मैंडेटरी तो ये नहीं है कि आप अपना बिजनेस कर ही नहीं सकते इफ यू डोंट हैव जीएसटी नंबर, बट प्रैक्टिकली when you are into the market you need GST number. Otherwise जो बड़ी कंपनीज या कॉर्पोरेट्स होते हैं या किसी भी पोर्टल पे डालते हो, तो you have to have GST नंबर। और बिजनेस के लिए मैंडेटरी नहीं है। आप छोटा बिजनेस शुरू करना चाहते हो अभी कि मैं अभी बड़े पोर्टल्स पे जाना ही नहीं चाहती हूँ, मैं घर से ही काम करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो जीएसटी की रिक्वायरमेंट नहीं है इन दैट केस। और वो टेस्टिंग के लिए भी, मतलब जैसे कई टेस्टिंग रिपोर्ट मांगते हैं कि भी ऐसे अगर हम प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। हाँ, अब अगर आप जैसे आप जब ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे डालते हो, तो वो कभी कभी ऐसे कंप्लायंसेस में टेस्टिंग रिपोर्ट मांग सकते हैं। कभी कभी कुछ कॉर्पोरेट्स जो होते हैं जिनको आप रीच आउट करते हो और उनको आप अपने प्रोडक्ट के बारे में पिच इन करते हो, दे आस्क फॉर द दिस टेस्टिंग रिपोर्ट्स। इसी तरह कुछ अगर आप होटल्स में जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज होती हैं, उनको रीच आउट करते हो, तो वो भी आपसे टेस्ट रिपोर्ट मांगते हैं, बिकॉज उनकी कुछ अपनी गाइडलाइंस होती हैं। और वो तो जिस ये दो इंडस्ट्री में, कराने हैं, हाँ, एंटी बैक्टीरियल और एंटी माइक्रोबियल। उसमें आप एंटी बैक्टीरियल और एंटी माइक्रोबियल जब आप लैब को बताओगे, नॉर्मली उनको पता होता है, बट 4 तरह के होते हैं वो। अगर किसी को वो चाहिए तो वो मैं दे सकती हूँ। 4-5 टेस्ट होते हैं नॉर्मली। एंटी माइक्रोबियल या एंटी बैक्टीरियल कहोगे तो यही 4-5 ही होते हैं।
आप ना मुझे वो एक बार फिर से शेयर कर देना, मेरा इंस्टा वो व्हाट्सएप ना उड़ गया था, तो मेरी सारी चैट डिलीट हो गई है। हाँ मैं कर आपने दूँ। मुझे भेजा था ना, वो फिर से हाँ भेज हाँ देना। हाँ, वो तो मैं कर वही दूँ। डिसइंफेक्टेंट के लिए भी वो चल जाएगा ना, वही बिल्कुल बिल्कुल, है ना, सभी एंटी चीजों के लिए। माइक्रोबियल बिल्कुल। अच्छा। हम्म। ओके समीरा जी, मुझे एक बात समझनी थी। अभी रिसेंटली ना वी वर प्लानिंग टू डू दिस वेस्ट मैनेजमेंट ऑन अ लार्ज स्केल फॉर कंपोस्टिंग एंड वेट वेस्ट मैनेजमेंट। तो उसमें चल रहा था कई हम लोग एक कंपनी फॉर्म करते हैं, तो शुरू में तो प्राइवेट लिमिटेड सोचा ये लोग फॉर्म करेंगे, बट देन नोबडी वांटेड दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलिए, या उसमें कुछ पूल इन करना इच्छा नहीं थी किसी की। तो दे डिसाइडेड AOP, एसोसिएशन ऑफ पर्संस करके। सो ये मैंने पहली बार ही सुना। सो देयर इज अ CA अमंगस्ट अस, तो या उन्होंने कहा ऑनेस्टली कि मैं भी इसको पहली बार सुन रही हूँ। हाँ तो जी, ऐसा करते हैं, इसको ना तुम मुझे एक बार शेयर कर देना, आई आस्क द CA और पूरा इस पे करके मैं ग्रुप में डाल दूंगी कि ये क्या होता है ना। हाँ जी, अदरवाइज जो ये एसोसिएशन आपने क्या, व्हाट वाज दैट? एसोसिएशन ऑफ पर्संस, आई थिंक ये कुछ टेक्निकल तो AOP। नहीं है, आई मीन इट्स इसको नॉट, इट्स इनफॉर्मल काइंड ऑफ सेटअप, जितना मुझे समझ में आ रहा है इट्स वेरी इनफॉर्मल काइंड ऑफ सेटअप। आई बट अगर हाँ हाँ जी, तो मैंने तो बस चैट GPT पे फाइंड आउट हाँ किया, तो मुझे हाँ ज्यादा मैंने इसमें कुछ समझ में नहीं आया हाँ सिंस। हाँ हाँ तो हाँ एक ऐसा तो है कि वी जस्ट कम टुगेदर, शेयर द बेनिफिट्स एंड मैंने नोबडी इज लायबल टू एनीथिंग, ऐसे इसमें है ऐसा तो कुछ। आई थिंक वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की तरह ही मुझे साउंड कर रहा है, बट आई थिंक आई विल गो थ्रू इट एंड हाँ फिर हाँ मैं जो भी है वो मैं ग्रुप में लिख दूंगी। सो लेट मी जस्ट रिसर्च ओके, ऑन दिस एंड एंड आस्क माय सीए ऑल्सो कि क्या इसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स हाँ क्या जी, होते हैं, है ना, और लीगल कंप्लायंसेस क्या हैं। जैसे कंपनी सेक्शन 8 में अगर हम करते हैं तो वो हमेशा जो एनवायरनमेंट के अराउंड आप काम करते हैं, तो सेक्शन 8 की कंपनीज का यही स्पेसिफिकेशन है कि आपको किसी सोशल या एनवायरनमेंट कॉज पे काम करना है। सो ज्यादातर लोग सेक्शन 8 में बना लेते हैं इफ दे आर रेडी टू टेक इट ऑन अ लार्ज स्केल और एकदम प्रॉपर उसमें। तो वो सेक्शन 8 की कंपनीज में बनाना वो रहता है, फायदेमंद रहता है, बिकॉज उसमें आप CSR पे भी काम कर सकते हो। यू कैन हैव द डोनेशंस एंड यू कैन हैव द क्राउड फंडिंग, वो सारी टेक्निकलिटीज उसमें कवर हो जाती हैं। तो ओके, रिकमेंडेड होता है सेक्शन 8 की कंपनी में इसको फॉर्म करना। तो बट या उसमें फिर वही हो जाता है कि अगर आप इसका कोई भी इस तरह का जब ऑर्गेनाइज सेटअप में जाते हो, देन कंप्लायंसेस के हिसाब से ये होता है कि आपको रिपोर्ट फाइल करनी पड़ती है। तो उसकी रिपोर्ट क्वार्टरली भी हो सकती है, एनुअल भी हो सकती है, देन यू हैव टू हायर CA फॉर दैट। सो वो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर को अवॉइड करने के लिए कई बार लोग नहीं जाते उसमें, है ना। दैट्स बट अगर आप प्रॉपरली जा रहे हो, देन इफ यू हैव अ बिगर प्लानिंग ऑफ अट्रैक्टिंग CSR और क्राउड फंडिंग और हाँ, डोनेशंस, तो फिर उसमें फिर कंपनी सेक्शन 8 रिकमेंडेड है। सेक्शन 8 की, हम्म, हाँ। हम्म, ओके जी, ओके, हम्म। थैंक यू। Someone has raised the hand. I can see who is raising the hand. Yogini, can you see? Someone has raised the hand. मेरा ही था। Acha, okay, okay, okay. Okay. Anybody else, please feel free to ask, आपके कोई क्वेश्चंस हो तो। हाँ हेलो समीरा समीरा जी, मैम, ये अच्छा, सॉरी। एक समीरा जी बस ये बताना कि हम्म जैसे मेरी NGO मैंने रजिस्टर करा रखी है, मतलब ट्रस्ट है वो हम्म प्राइवेट हम्म ट्रस्ट, हम्म। उसको आप बोल रहे हो ना कि उद्यम में, मतलब उसको भी हाँ रजिस्टर कर कर सकते सकते हैं, कर सकते हैं, हैं? हाँ ठीक है, ठीक है। कर सकते हैं। हेलो समीरा मैम, दिस इज हाय, पारुल। हाय Hi. पारुल। So ma'am, I was just asking about I read about हम्म Section 8 companies and all, हम्म but I need to understand if there is an organization like volunteer-based organization. Only I am the person who is नहीं, I'm just working and everyone is just a volunteer. So is there a probability of registering it under a certain name नहीं, or something? आई थिंक आपको कुछ फाउंडिंग मेंबर्स, तो देयर इज सम नंबर ऑफ मेंबर्स, यू हैव टू हैव दोज नंबर्स। आई मीन जस्ट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, लेटर ऑन यू कैन वर्क as you want, but for the formation I think you need a certain number of founders, or maybe I'll check it कि कितने नंबर होते हैं, बट कुछ नंबर तो है। So what will be this called? मतलब इसको क्या आप हम कोई कंपनी फॉर्म कर रहे हैं? हाँ It हाँ, cannot. आप फाउंडर्स कहलाओगे या डायरेक्टर्स कहलाओगे उसके।
Okay. चाहे बाद में वो आप वॉलंटरी काम करो या जो भी है, बट फॉर्मेशन के लिए आपको वो चाहिए होंगे कुछ सर्टेन नंबर. आई चेक द नंबर्स एंड आई लेट यू नो इन द ग्रुप. Okay, okay, ma'am. कुछ नंबर्स चाहिए होते हैं फॉर फाउंडिंग दिस. Founding this. हाँ हाँ, चाहे And 2 ही हो बट 2 आपको चाहिए होंगे. okay, ma'am. Or trademark registration, like Hmm. if I have a logo, I have a name, a हाँ brand name also. तो बिल्कुल, if I do trademark registration, so that is enough. उसके अभी उसमें हाँ सब कुछ कवर हो जाता है. इफ यू गो फॉर द ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन ना, उसमें आपका लोगो भी कवर हो जाता है. उसमें आपका कलर थीम, अगर आपने अपने प्रोडक्ट का कोई कलर थीम है वो भी कवर हो जाता है. आपका कोई कैच लाइन है वो भी कवर हो जाती है. आपको बस उसको ट्रेडमार्क करते हुए सारी स्पेसिफिकेशन लिखनी होती है कि मैं ये ट्रेडमार्क में कवर करना चाह रही हूँ. तो आई सॉ मैम कि उसमें हर एक चीज का अलग अलग कॉस्ट हम्म, था. लाइक फॉर हाँ वो नेम तो है. हैज अ कॉस्ट या एंड टैगलाइन हैज अ आई नो, कॉस्ट वो एंड तो है, कॉस्ट तो ईच वन होगा. हैज अ डिफरेंट कॉस्ट, हाँ हाँ, राइट? कॉस्ट तो तो होगा. या हाँ. ओके. तो आपको देखना होगा कि आप हाउ मच यू आर रेडी टू शेल आउट. बट हाँ, उसमें कॉस्ट तो इन्वॉल्व होती है फॉर ईच काइंड ऑफ दिस थिंग. ओके, तो बट अगर माय मैं पॉइंट इज कि ट्रेडमार्क में कवर सब कुछ हो जाता है. कवर सब कुछ हो जाता इवन है. इवन योर लोगो, द कलर स्कीम भी कवर हो जाती है. जो कैच लाइन है वो भी कवर हो जाती है. एवरीथिंग, योर बॉटल स्टाइल अगर कुछ डिफरेंट है वो ऑलरेडी, अगर ट्रेडमार्क नहीं है तो वो कवर हो जाता है. ओके मैम. बट ध्यान अभी रखना अगर ट्रेडमार्क करते हुए कि किसी और का नहीं आप ट्रेडमार्क कराएं, क्योंकि उसमें लीगल कंप्लायंसेस भी हो जाती हैं. बिकॉज कभी कभी आप अप्लाई कर देते हो फिर दूसरा केस कर देता है. ओहो, ओके ओके, तो गॉट थोड़ा इट. सा वो करके अपना पूरा रिसर्च करके एंड देन गो फॉर दिस. We can do that. हाँ. अगर मैम अभी आई एम नॉट रजिस्टर्ड अंडर एनीथिंग और सम हम्म ऑर्गेनाइजेशन वांट टू डू वर्कशॉप्स, मतलब आई डू वर्कशॉप्स, आई डू कंडक्ट हम्म वर्कशॉप्स, तो हम्म अगर वो मेरे से कोलैब करना चाहते हैं और मैं कहती हूँ कि हम्म मेरे पास कोई किसी भी तरह का रजिस्ट्रेशन नहीं है, सो दे हम्म टेक मी एज अ हम्म, कम्युनिटी वॉलंटियर काइंड ऑफ पर्सन दे, तो वैसी हाँ. मुश्किल आ जाती है. तो मैं ऐसा मिनिमम क्या कर सकती हूँ जिससे कि मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन जीएसटी की तरफ आप, जीएसटी. हाँ आप प्रोप्राइटरशिप की कोई भी वो बना लो. प्रोप्राइटरशिप के अंदर कोई भी वेंचर करो. जैसे मेरा वेंचर है, इट इज हाँ. ट्रैश जीरो वेस्ट कंसल्टेंसी सर्विसेज. सो ओके. मेरा ये प्रोप्राइटरशिप में है और मैंने जीएसटी नंबर लिया हुआ. आप उसके अंडर कर सकते हो कोई भी काम, कोई भी पेमेंट ले सकते हो. बस आपको जीएसटी की वो क्वार्टरली वो रिटर्न भरनी होती है. सो आस्क ईदर यू कैन लर्न योरसेल्फ कि कैसे भरते हैं, किसी सीए से एक बार लेके गाइडेंस लेके खुद से भर सकते हो. इट्स नॉट अ बिग डील, वो हो जाता है. बट हाँ, आपको वो 3 महीने की वो कंप्लायंस करनी पड़ेगी, फिर जीएसटी की फाइल करनी पड़ेगी जो रिटर्न होती है. ओके, सो यू आर बट सेइंग कि जीएसटी ले सकते हो हाँ जीएसटी से प्रोप्राइटरशिप थ्रू में. कर सकते हैं. हाँ ओके. हाँ, प्रोप्राइट मैंने भी लिया हुआ प्रोप्राइटरशिप में. ओके मैम. हम्म. ओके, थैंक यू सो मच मैम. ओके. Anybody else? Sucheta ji, Asmita. Yes, ma'am, Monica. I wanted to know ये जो हम टेस्टिंग करवाते हैं तो उसके लिए भी हमें अपना पूरा डिटेल देना पड़ेगा, कंपनी होनी नहीं, चाहिए नो नो कोई- नो, नहीं कुछ नहीं चाहिए होता. आप कुछ इंडिविजुअल टेस्टिंग करा सकते हो, बस आपको पे करना पड़ेगा. उसके कुछ अप्रोक्सीमेटली चार्जेस कितने होते हैं अगर फ्लोर क्लीनर है या डिश सोप है देखो उसका? वो ना, इसको फ्लोर क्लीनर या डिश सोप से नहीं करते हैं कि आप फ्लोर क्लीनर करा रहे हो या उससे करा रहे हो. आप एंटी बैक्टीरिया और एंटी माइक्रोबियल टेस्ट करा लोगे उतना काफी होता है. क्योंकि आप प्रोसेस का करा रहे हो और उसका करा रहे हो. डिश वॉश में आप क्या कराओगे कि एफिकेसी टेस्ट कराओगे. सो एफिकेसी तो फिर डिपेंड करेगी कि आप उसमें जो फोम बना रहे हैं उसकी एफिकेसी है ना. तो ऐसे एज ए डिश वॉश आप किसी कोई टेस्ट नहीं करा सकते. आप एंटी बैक्टीरियल और एंटी माइक्रोबियल टेस्ट कराओगे, क्योंकि डिश वॉश में आपको है कि जो जो आपने सर्फेक्टेंट डाला वो अपना काम कर रहा है और उसके अलावा कोई उसमें माइक्रोब्स नहीं वो हो रहे हैं, या वो मतलब जर्म्स, जर्मिसाइड तो नहीं कह सकते, बट हाँ कोई माइक्रोब्स खुद से ये जनरेट नहीं कर रहा है या कोई बैक्टीरिया खुद से नहीं डाल रहा है. वो आप करा सकते, वो आपको बस चाहिए. क्योंकि तो सर्फेक्टेंट तो अपना काम सर्फ का करेगा ना, वो तो क्लीनिंग का काम करेगा ही. तो इसी तरह जब आप लॉन्ड्री वॉश करते हो तो वो भी अपना सर्फेक्टेंट अपना काम करेगा. आपको सिर्फ अपने प्रोडक्ट में ये चेक करना होता है.
मैम यहाँ पे दिल्ली एनसीआर में कोई लैब है जिसे आपने बहुत करवाया हो? सारी लैब है, मैं नाम दे दूंगी, लेकिन आप वैसे भी NABL और NABL की वेबसाइट पे जाओ और उसमें आप ऑथराइज लैब्स जो हैं स्टेट वाइज सिटी वाइज ढूंढ सकते हो। ठीक है, उसमें अच्छा, बहुत सारी लैब्स आ जाती हैं, बट ये जरूर होता है कि उन लैब्स में आपको कॉल करके कई बार पूछना होता है कि वो ये सर्टेन टाइप का टेस्ट करते हैं कि नहीं करते, क्योंकि हर लैब। हाँ, बट ऑन ए शॉर्टर अगर आपको एकदम क्विक वो चाहिए तो मैं लैब का नाम भेज दूंगी, बट फॉर अदर्स टू नो कि आप यू कैन गो टू द NABL वेबसाइट और उसमें जो भी स्टेट वाइज उनके ऑथराइज जो लैब्स होती हैं वो आ जाती हैं। सो यू हैव टू कॉल, कभी कभी उनके वेबसाइट जो लैब है उसके भी आप पोर्टल पे जाके देख सकते हो कि वो कौन कौन से टेस्ट करते हो, अदरवाइज यू कैन जस्ट कॉल देम एंड आस्क कि आप ये टेस्ट मुझे करवाना है। सो खुद भी बता देते हैं कि हम नहीं करते, कोई और करता है, तो ऐसे करके यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस प्रोसेस। बट दिल्ली NCR में तो जो हमारे हैं वो तो मैं बता ही सकती हूँ, तो आई लेट यू नो द जो भी वो है लैब है जिससे करवाते हैं हम नॉर्मली, दिल्ली में है वो। ओके, हम्म थैंक यू। हम्म। Hello Samira ma'am, this is Khayali here. हाय खयाली। Ma'am, मेरा क्वेश्चन ये है कि रिसेंटली आई केम टू नो अ पर्सन, एक जन है, मतलब हमारी सिटी में किसी से मिली, एंड ही इज हैज ओन हिज वन फाउंडेशन कॉल्ड सन्मान फाउंडेशन. So ओके। because of my work related to bioenzymes and organic solid waste, that person proposed that I join their foundation as an invitee director. ओके। I am completely unaware about what will be what my role will be in that, or what kind of a legal documents will be there. I haven't done. Just sign the MOU with them, na? Just ask them, Okay. then I'll sign the MOU with you. So just Okay. see कि MOU में वो क्या conditions lay out करते हैं, because it's all about the MOU कि आप लोग आपस में क्या mutually करते हो, किस उस पे आते हो, arrangement पे आते हो। सो MOU में आप देखो कि आपके साथ कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अटैच नहीं कर दिया उन्होंने कि कोई लॉस होता है तो उसमें आप इक्वली वो होंगी, इस तरह की अगर कोई भी कंडीशन है तो उससे आप यू कैन ऑलवेज रिफ्यूज। सो जस्ट चेक द Okay. MOU, और यू कैन राइट योर ओन MOU एंड जस्ट प्रपोज टू देम कि मैं ये काम करूंगी, और मे बी यू कैन म्यूचुअली डिसाइड कि हमारा MOU किस पे होगा। इट्स ऑल अबाउट MOU। Right. So I can define my own conditions and हाँ, get you can attached to define or them. just wait for them to Okay. define on what arrangements they want to go into Okay. that association. If you don't like any of the points or any of the conditions laid out in the MOU, you can refuse कि इसको just remove this thing. So just write Okay. the MOU carefully, and if there is nothing objectionable, you can just go as an invitee director. There no problem, and it's a foundation, so I don't think कि कोई इतना problem होना चाहिए. But just read the MOU carefully. Oh, Hmm. okay, ma'am. Thank you. Hmm. गुड इवनिंग समीरा मैम. गुड इवनिंग Hi, एवरीवन. hi. मैम, मैम हेलो, हाय मैम. मुझे पूछना है कि जो सैंपल का जो टेस्टिंग Hmm. होता है, जैसे Mhm. आपने बोला कि ये एंटीबैक्टीरियल एंटी Hmm. फंगल जो उसमें प्रॉपर्टी होता है, तो उसका जो सैंपल का जो Hmm. टेस्टिंग होता है, क्या उसका हम Hmm. रिपोर्ट देख सकते हैं कि सैंपल्स में क्या पैरामीटर्स होते हैं, या एग्जैक्ट उसका रिपोर्ट हम देख सकते हैं, रिपोर्ट या देते आपको हैं वो आपको? एग्जांपल दे? ओके मैम. रिपोर्ट मतलब किसका देख सकते हैं? व्हेन यू विल जो गेट भी इट टेस्टेड, या किसी और ने जो कराया हुआ है क्या? मैं किसी और समझी ने नहीं जो सॉरी। कराया हुआ है, नहीं हाँ, हाँ। किसी और ने कराया हुआ है, कि हम रिपोर्ट देख सकते हैं कि हाँ, रिपोर्ट्स में क्या रिपोर्ट बिल्कुल किसी और का कराया हुआ रिपोर्ट तो आप देख ही सकते हो, बट आपको तो अपने प्रोडक्ट का कराना है ना। मैम वो कहाँ से हम देख सकते हैं रिपोर्ट, कि रिपोर्ट्स में क्या पैरामीटर्स होते हैं, एंटीबैक्टीरियल एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है, तो उसके क्या टेस्ट में उसके क्या पैरामीटर्स होते हाँ, हैं हाँ, वो? रिपोर्ट तो कोई भी जिन लोग ने करा रखा है रिपोर्ट तो शेयर कर देंगे, उसमें पैरामीटर्स तो वो नॉर्मली वो तो रिजल्ट लिखते हैं, एक्चुअली पैरामीटर्स तो ऐसे नहीं मेंशन करते, वो तो रिजल्ट लिख देते हैं। ओके मैम, अभी तो मिल आप सकता रिजल्ट है? देख सकते हो। अभी तो मेरे पास आई मीन यहाँ तो नहीं है, लैपटॉप पे तो नहीं है। आई कैन मेरे इसमें है मोबाइल में, आई कैन शेयर इट लेटर। ओके मैम. हाँ, बट उसमें रिजल्ट्स होते हैं। सो अगर आपको कराना है तो आप अपना जो भी आपने सैंपल बनाया आप उसका कराओ। बट हाँ, वैसे आपको देखना तो आप देख सकते हो, लेकिन आप अपने सैंपल की टेस्टिंग कराओ तो वो ज्यादा हुआ। ऑल्दो इट्स टाइप टेस्टिंग, तो हम इसे मान सकते हैं कि जिस टाइप से हमने ये बनाया है, जिस प्रोसेस से बनाया है, वो तो सभी का सेम है ना। लेकिन फिर भी ओके. आपके अपने सैंपल में कितने वो हैं,
स्टेबिलिटी है कि नहीं है, एंटी माइक्रोबियल या एंटी बैक्टीरियल कितनी वो है उसकी, वो तो आपको अपने ही सैंपल में इट्स रिकमेंडेड कि दैट यू गेट योर सैंपल टेस्ट डन so that you can say कि yeah, my sample is tested. ओके हाँ, वैसे रिपोर्ट देखनी है वो तो देख ही सकते हो, उसमें कोई वो नहीं है, मैं आई शेयर द रिपोर्ट. ओके ओके मैम, थैंक यू. आई एम जस्ट पुटिंग माय नंबर ऑन चैट बॉक्स. थैंक यू. चैट में तो मुझे मालूम नहीं, बट यू आर इन द ग्रुप ना, आप यस ग्रुप यस में मैम, हो क्या, बीजी है ग्रुप ना? में. यस यस मैम, हाँ, नेहा. तो वहाँ पे नेहा, आप yes. में यू कैन जस्ट रीच आउट टू मी, मैं कर दूंगी, Okay. बट इन केस आई फॉरगेट जस्ट रिमाइंड मी, है ना? एक Okay, बार okay, रिमाइंड sure. करा देना. हाँ, Okay. Thank you so much, ma'am. ओके. तरुजी, आपका चांस. यस तरुजी. आवाज नहीं आ रही है तरुजी आपकी बिल्कुल भी. अब आ रही है? हाँ voice अब आ मेरी? गई. हाँ जी. हाँ समीरी जी, एक बार हम लोग अपना एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल जैसे फ्लोर क्लीनर का टेस्ट कराते हैं तो हमें कितने टाइम बाद उसको रिपीट करना चाहिए? देखो, अगर कोई, देखो आपने अगर एक बार सैंपल टेस्ट करा लिया तो आपका प्रोसेस तो वही चल रहा है, उसके बाद हम जी यही मान के चलते हैं कि आप सेम प्रोसेस पे बना रहे हो, है ना? लेकिन बात वही हो जी जी जाती है कि जब तक आप छोटे लेवल पे कर रहे हो और कोई आपसे नहीं पूछा, तो आपके लिए एक टेस्ट काफी है कि भी मैंने अपने सैंपल का टेस्ट करा रखा है. लेकिन जी अगेन एज आई टोल्ड यू कि अगर आप किसी बड़ी इंडस्ट्री के साथ टाई अप करते हो, जैसे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है या फिर हेल्थ इंडस्ट्री है, जैसे कुछ हॉस्पिटल्स हैं या छोटे कुछ नर्सिंग होम्स हैं, अगर वो आपसे कोई प्रोडक्ट लेते हैं, उनको लेकिन हमेशा हर बैच का सैंपल टेस्ट चाहिए होता है, तो आपको बैच का टेस्ट कराना पड़ेगा, एवरी न्यू बैच, बिकॉज ओके उनको बैच का टेस्टिंग चाहिए होता है, बिकॉज उनकी अपनी कुछ गाइडलाइंस होती हैं, अपनी कंप्लायंसेस होती हैं, जो उनकी इंडस्ट्री की कंप्लायंसेस होती है उनको वो फॉलो करनी पड़ती हैं. सो हमें पता है कि जो हेल्थ मेडिकल इंडस्ट्री है उसके लिए तो बहुत ही स्ट्रिक्ट है कंप्लायंसेस. जी जी इवन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लिए भी काफी स्ट्रिक्ट कंप्लायंसेस हैं. जितनी भी चेन्स ऑफ होटल्स हैं जो कि इंटरनेशनल भी है, उनकी तो बहुत ही स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हैं. तो उन लोगों को एवरी बैच का टेस्टिंग चाहिए होता है. सो इट डिपेंड्स कि ओके आप आपके क्लाइंट क्या मांग रहा है, बट अगर अदरवाइज आप सिर्फ एक अपने सैंपल का कराते हो, तो हम उसको प्रोसेस का टेस्टिंग भी मानते हैं कि हम इस प्रोसेस से बना रहे हैं और हमने उस प्रोसेस की सैंपल की टेस्टिंग की है. सो आप ये माना ही जाएगा कि इट इज अंडरस्टूड कि आप आगे भी सारे बैचेस को उसी प्रोसेस से बना रहे हो, है ना? लेकिन ओके अनलेस अनटिल आपका क्लाइंट आपसे नहीं मांगता, अगर वो मांगता है तो आपको हर बैच का टेस्टिंग कराना ही पड़ेगा फिर. ओके ठीक है, थैंक यू. Anybody else? Anybody? समीरा जी, मेरा एक सिंपल माने मे जस्ट फाइंड इट वेरी अरे कोई मतलब नहीं है सवाल का, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि वी आर मेकिंग स्मॉल बैचेस, सो एवरी बैच विल हैव टू बी टेस्टेड ना, हमें अगर करना होगा तो. देखो योगिनी, बात वही हो जाती है कि डिपेंड्स कि आप किस लेवल तक अपने बिजनेस को ले जा रहे हो, है ना? अगर तो हम जैसे अभी तक काम अपना कर रहे हैं, छोटे छोटे हमारे ऑर्डर्स हैं, है ना, राइट. जहाँ पे कि एक इंडिविजुअल को भी किसी कंप्लायंस की जरूरत नहीं होती, वहां तक चलेगा. ये सारी टेस्टिंग की जरूरत हमें वहां होती है जहाँ की आपको ये लीगल कंप्लायंसेस है कहीं किसी इंडस्ट्री में, वहां आपको हर बैच की करानी होती है. सो अदरवाइज अगर आप छोटे स्मॉल स्केल उस पे कर रहे हो कुछ नहीं तो लगे. नहीं चाहिए होता. लेकिन यू नेवर नो, आप कल किसी बड़े कॉर्पोरेट के साथ आप टाई अप करो और पूरी डील हो गई और वो लास्ट में बोले कि मुझे तो इस बैच का टेस्टिंग चाहिए, फिर आप हाँ. क्या करोगे? फिर तो नहीं हो पाएगा ना, है ना? राइट राइट. सो ये आपको कॉल लेनी है कि यू हैव टू टेक दिस कॉल कि नाउ इज द टाइम व्हेन आई हैव टू गेट एवरी बैच
test it Test it. because now I'm receiving bigger orders, or maybe Mhm. I'm taking a next step and I'm reaching out to the corporates and pitching to them. So अगर आप छोटे लेवल पे काम कर रहे हो, जैसे कि हम एक दूसरे को देते हैं, या किसी ने ऑर्डर कर दिया, कोई घर में किसी को चाहिए या वैसे बेचते हैं, until then it's not required. No. ये सारी चीजें वही होती है कि जब आपको लीगल कंप्लायंसेस में कहीं ना कहीं उनको सेटिस्फाई करना होता है, तो तब इन चीजों की जरूरत हो जाती है. अदरवाइज तो हमें तो मालूम ही है कि प्रोडक्ट काम कर रहा है ना. Right, बट right. हम कह के तो नहीं बोल सकते ना कि हाँ ये बिल्कुल ठीक है, ये तो बिल्कुल परफेक्ट काम करता है, इसमें कोई अपने आप से कोई वो नहीं है, किसी तरह के पैथोजेंस नहीं है, ये नहीं. हम तो कह देंगे, बट आपको प्रूफ देना पड़ेगा अगर कोई मांगेगा तो. तो इट्स योर कॉल कि आपको कब लगता है कि अब तो मुझे सारे बैचेस टेस्ट करानी है, बिकॉज नाउ आई एम गोइंग ऑन अ नेक्स्ट लेवल. Larger scale. Right. हाँ हाँ, वो है. समीरा जी, ISO सर्टिफिकेट लेना चाहिए क्या? ले लो, बुराई क्या. ISO लो, ऑर्गेनिक लो, फिर तो आप ऑर्गेनिक भी लिख सकते हो. अभी तो हम ऑर्गेनिक नहीं लिख सकते. मैं ये बात, मुझे लगा था कि कोई क्वेश्चन पूछ लेगा, लेकिन किसी ने नहीं पूछा, तो ये मैं बता दूं कि ऑर्गेनिक प्लीज अपने प्रोडक्ट को मत मेंशन कीजिएगा. आप हैंडमेड और नेचुरल लिख सकते हैं. ऑर्गेनिक इज अ सर्टिफिकेशन, इट्स नॉट जस्ट अ वर्ड, it's a certification. So agar if you claim your product as organic, so you have to take the certification from the कुछ organic agencies हैं, इंडिया की भी हैं, और इंटरनेशनल भी हैं. उनसे आपको सर्टिफिकेशन लेना होता है. ISO का सर्टिफिकेशन ले लो, लेने में क्या, बट पैसे लगते हैं यार बहुत. ऑर्गेनिक 7,000 बोलो. हाँ, तो फिर कर लो. अगर पूरा मतलब वो पूरी ड्रिल करने को तैयार हो, उसकी तो काफी ड्रिल होती है, मतलब पूरा उनको तो हर तरीके का ये चाहिए होगा, कंप्लायंस चाहिए होगी, हर तरह का टेस्ट चाहिए होगा. अगर पूरी ड्रिल करने के लिए तैयार हो तो करो. अच्छा. व्हाई नॉट, करो ना, शुरू तो करो, देखते हैं फिर क्या दिक्कत आती है. ISO लेना तो बहुत ही बड़ी बात है. अगर आपकी ISO सर्टिफाइड हो जाती है तो अपने आप में बहुत ही बड़ा USP है वो. तो फिर तो आपकी ब्रांड वैल्यू बढ़ गई ना. देखो, ये सारी चीजें तो ब्रांड वैल्यू की हैं फिर तो. तो आप ऑर्गेनिक का वो लेते हो, सर्टिफिकेशन लेते हो, आयुष का ISO सर्टिफिकेशन लेते हो, आयुष का लेते हो. आयुष में आयुष तो मुझे शायद नहीं. आयुर्वेदिक वाले के लिए ज्यादा है ना, हाँ हाँ हमारे लिए नहीं होगा. हाँ. और आयुष इसमें तो नहीं देता. आई थिंक क्लीनर्स में तो वो नहीं देता. स्किन केयर के लिए आयुष देता है, पर्सनल बट केयर अगर कुछ है. हाँ, हाँ. पर्सनल केयर और स्किन केयर के लिए देता है. बट उनकी भी फिर उसी तरह की कंप्लायंस होती है जैसे कि हमारी ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट की होती है. आयुष के भी उसी तरह फॉर्म्स वॉर्म्स भरने होते हैं सारे. फॉर द स्किन. और ऐसे होम्योपैथी, आई थिंक आयुर्वेद का, हाँ, और यूनानी का भी होता है, बट वही है कि उनकी भी फिर वो सारी फॉर्मेलिटीज उसी तरह की होती हैं. तो जब क्योंकि अब तक आप, ऐसे लगता है एंजाइम बनाना इजी है. हाँ उसके बाद हाँ मार्केट में जब जाओ तो पता चलता है अरे टेस्टिंग भी हाँ करानी है, सर्टिफिकेट भी चाहिए, ट्रेडमार्क भी हाँ. कराना है. ट्रेडमार्क तो खैर, ट्रेडमार्क तो इतना जरूरी नहीं है. ट्रेडमार्क कोई मैंडेटरी और नहीं है, उसकी मत फीस भी कराओ. बढ़ गई है. हाँ, 4,500 थी ना, वो देखो, 7,500 हो गई है. ट्रेडमार्क जैसी चीज या ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट जैसी चीज या ISO, ये आपकी ब्रांड है, ये ब्रांड बिल्डिंग है. हम्म. अदरवाइज आपके प्रोडक्ट को रन करने के लिए मैंडेटरी नहीं है ये, हाँ है ना. हाँ. ना ही आपको किसी इंडस्ट्री से डील करना है या कॉर्पोरेट से डील करना है, तब वो कहीं पे भी आएगी प्रॉब्लम. GST की प्रॉब्लम जरूर आएगी जब आपको किसी कॉर्पोरेट से डील करना है. वो बोलेंगे कि यू हैव टू हैव GST, तो GST नंबर होना जरूरी है. बट अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं आएगी. बट ये सब कराने से ब्रांड वैल्यू जरूर आपकी बढ़ जाएगी. अगर आप ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट लेते हो, ट्रेडमार्क लेते हो, और ट्रेडमार्क में भी ध्यान रखना है कि मुझे तो आपका अभी कुछ बिल्कुल. लोग ऐसे मिल गए कि हम्म जिनको ऐसे मैंने बोला ना कि मैं हम्म वेबसाइट सोचूं इस पे, मैडम ये हम्म. फ्री वाले काम मत करना. अच्छा. मैंने कहा नहीं, ये 10-20 हजार में बन जाएगी. तो वो हाँ मतलब वो जो बहुत महंगी वेबसाइट बनती है, मैं कहा भैया मेरा भी बजट नहीं है इतनी महंगी वेबसाइट. लेकिन कईयों को है कि अगर मार्केट में जैसे होता है ना, कईयों के स्टैंडर्ड्स नहीं होते कि नहीं नहीं, देखो, ये आपको. तो ये पूरा का पूरा जो हम बात कर रहे हैं ना, ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है स्वाति. हम्म. अगर तुम मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पे जाओगी तो ये तुमको अपने प्रोडक्ट को शुरू करने से पहले इन सब चीजों की ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी. प्रोडक्ट तो बात की बात हाँ हो जाएगी. आपको पहले हाँ. ब्रेनस्टॉर्मिंग ये करनी पड़ेगी कि आपकी नीश क्या होगी मार्केट की, आप किस तरह के कंज्यूमर को टारगेट करना चाह रहे हो,
आपकी टोन क्या रहेगी, आपको ये सब चीज पहले डिसाइड करनी पड़ेगी। एंड उसके बाद ही आपका लोगो की डिजाइनिंग, आपकी वेबसाइट की डिजाइनिंग उस पर डिपेंड करेगी। अगर आपको एक्चुअली प्रीमियम अपना प्रोडक्ट बनाना है तो यू हैव टू अ वेरी नाइस वेबसाइट, वेरी गुड लुकिंग एंड वेरी अट्रैक्टिव हाँ, वेबसाइट। और वो बहुत महंगी बनती है, वो मतलब महंगी महंगी इन द पड़ेगी। सेंस कि हाँ, हाँ मतलब 60,000 तो मिनिमम है। हाँ, वो फिर तो उसके 1-1.5 लाख उस, तक की बात हो रही थी कि मैडम हाँ चाहे आप हाँ इंस्टॉलमेंट में दे देना। मैंने कहा अरे हाँ इंस्टॉलमेंट। हाँ। तो वो मतलब बात वही हो जाती है कि इंडिविजुअल के लिए वो करना बड़ा मुश्किल है। वो तो हाँ, फिर वही होता है कि आप एज ए ग्रुप की तरह काम करो, फिर तो हो सकता है कि सारी आपकी जो एक्सपेंस शेयरिंग भी हो और रिसोर्स शेयरिंग भी हो, फिर सब क्योंकि शेयरिंग। मैंने ना अभी LLP रजिस्टर करा है, हाँ, लिमिटेड, हाँ, तो पार्टनरशिप जो LLP है, में भी क्योंकि लिमिटेड मेरा ये लाइबिलिटी जो, पार्टनरशिप। हाँ। हाँ, और मैंने तो हम्म ये सिर्फ अभी मतलब दक्ष के लिए ही मतलब हम्म एक स्टार्ट किया है, दक्ष लीला हम्म नाम रखा है। हम्म। तो तो मैंने वही है कि भाई मिनिमम जो भी थोड़े हाँ बहुत लगा के ना मेरी एक नीस के साथ हाँ स्टार्ट किया है। हाँ हाँ हाँ। ठीक अब है। उसके जून में लॉन्च करने हैं चीजें ना। हाँ, तो उसका भी जीएसटी तो आई थिंक उसका भी ले सकते हो तुम, जीएसटी जीएसटी मैंने तो। हाँ अप्लाई कर दिया, मैंने हाँ उसको वही बोला, क्योंकि हाँ। अभी क्या है ना, मैं जिससे भी बात करी कुछ लोग वो गवर्नमेंट टाइप के लोग मिल गए कि मैडम आपकी हम्म वेबसाइट है, मैडम हम्म। आपके पास जीएसटी है, ये है वो है, तो मैंने करे अभी, क्योंकि अप्लाई कई चीजें करते ही। ना, नहीं मतलब टाइम लग रहा है, जैसे 1 महीना हो गया मेरे ये ना चीजें दिए हुए, अभी पैन नंबर नहीं आया या जीएसटी भी, मतलब अभी टाइम लग रहा है। अच्छा। तो फिर वही लग रहा है कौन से सीए से काम करा रहे हो। तो मैंने कहा भैया, वो भी बोल देते कि मैडम पोर्टल डाउन है, कई बार मतलब सर्वर डाउन होता है, कुछ ना कुछ हम्म। प्रॉब्लम कभी होती है। हम्म। तो वो भी मेरा मतलब थोड़ा सा भी डिले चल रहा है। और बट वैसे अप्लाइड फॉर हो गया जीएसटी वाले में, जीएसटी ऑफिस में। उसने फॉर्म तो फिर मतलब कुछ तो साइन हम्म कराए थे मेरे से ना, कि मैं जीएसटी का मतलब तैयारी कर लेता हूँ हम्म उसने, क्योंकि वो पैन कार्ड आएगा तभी जीएसटी के लिए जाएगा ना। हम्म तो अभी हम्म पैन कार्ड नहीं आया। हम्म। ठीक है, मैंने भी वैसे जब मैंने अप्लाई किया था तो ज्यादा टाइम तो नहीं लगा था, ऑल्दो उसने मुझे बुलाया जरूर था, जीएसटी इंस्पेक्टर ने। बस फोन अच्छा। आया। हाँ, ये भी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। फोन आया कि आपको, आपने जीएसटी अप्लाई किया, मैंने बोला हाँ, आप एक बार ऑफिस आ जाओ। तो वो ठीक है अच्छा। भाई। हाँ, तो मेरे हस्बैंड वैसे डील ही इसी में करते हैं, वही उन्होंने अप्लाई करवाया था। कह रहे ये मैंने इतने लोगों का जीएसटी अप्लाई कराया, मेरे पास कभी किसी का ऐसे फोन नहीं आया, मतलब जीएसटी अप्लाई किया, जो जो हम्म। चाहिए उतने डॉक्यूमेंट वो हो जाते हैं, ये तुझे क्यों बुलाया? मैंने कहा मुझे नहीं पता। एनीवे हम दोनों गए वहां पे, वहाँ इंस्पेक्टर से मिले, जिस वार्ड में मैं आती थी उसके इंस्पेक्टर से मिले। तो उसने बिठाया, फिर कह रहा है मैडम, मैंने कहा सर बुलाया था, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ डॉक्यूमेंट कम है? कह रहे नहीं मैडम, मेरे को ये बताओ, ये जो आपने इसमें पूरा डिटेल भरा है, जो इसकी स्पेसिफिकेशन भरी, ये काम आप करते क्या हो, ये होता क्या है? अच्छा। मैंने कहा आ जाओ, चलो सुनो, अब तुम भी हमारा अच्छा। ज्ञान लो। तो उसको फिर ज्ञान दे के ये वेस्ट मैनेजमेंट होता है, इससे रिलेटेड ये काम होते हैं। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि भाई लोगों को ये पता भी नहीं कि ये अपने आप में पूरी इंडस्ट्री है, मतलब बहुत लोगों को ये बात पता ही नहीं है हाँ, कि वेस्ट मैनेजमेंट में आप कुछ काम करते हो, आप इससे रिलेटेड कुछ प्रोफेशनल काम होते हैं, आप उसमें एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, आप उसमें जीएसटी नंबर लेते हो, क्योंकि ऐसे काम होते हैं। तो तब उसको हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, फिर मैं अभी उसने। आईआईटी गई हुई थी वर्कशॉप अटेंड करने, तो हाँ वहाँ किसी को नहीं पता था। हाँ तो वो मतलब कुछ तो बात हुई, जो हमें एक पिच डेक भी देनी थी, तो मेरे साथ कुछ बच्चे थे तो वो थोड़े वैसे ही थे। हम्म अच्छा, आप फिर पी के हम्म डेमो दे दोगे कि ये सेफ है? मैंने कहा यार मैं वो वैसे बता रही हूँ, लेकिन तुम, तो वो सारे हाँ। नहीं पियो मत, मतलब वो उनको एकदम ऐसे लगे। तो मैंने कहा हाँ अरे भाई, इसमें कुछ ऐसा नहीं डला हुआ, मैंने कहा सेफ है ये बस। तो हाँ, तो मतलब वही है वहाँ कि किसी को नहीं पता था। हाँ, तो यहाँ उसको जीएसटी इंस्पेक्टर तक को नहीं पता था। एनीवे जब मैं हाँ। उसे पूरा समझा के आई, और जब तक मैं वापस आ रही थी, रास्ते में ही थी, तो मेरे पास मैसेज आ गया कि योर जीएसटी हैज बिन क्लियर्ड, या जो भी है रजिस्ट्रेशन हो गया अच्छा, आपका। उसने मतलब बस इतना उसको डाउट था कि ये काम मैं करती क्या हूँ। कर क्या रहे हो? हाँ। हाँ, उसने उसके लिए बुलाया था। तो ये है। तो हाँ, वही था कि आप बस उसमें ये क्या बोल रही थी मैं, हाँ, ऑर्गेनिक नहीं लिखोगे। और एक और चीज कि आप इसको जर्मिसाइड या इंसेक्टिसाइड या ये पूरी तरह से एक और वर्ड होता है ना, डिसइंफेक्टेंट क्लेम नहीं करो। नॉर्मल क्लीनर, सरफेस क्लीनर, कोई भी तरह का क्लीनर लिख दो, डिसइंफेक्टेंट या जर्मिसाइड मत क्लेम करना। नहीं तो फिर उसकी अलग लीगल कंप्लायंस रिक्वायरमेंट होती है। बस नॉर्मल क्लीनर, हैंडमेड, नेचुरल आप कर सकते हो।
कोई लाइसेंस नहीं चाहिए। द मोमेंट यू राइट कि जर्मिसाइड है, इंसेक्टिसाइड है, देन आपको फिर अपना उसमें फूड एंड ड्रग्स के उसमें अप्लाई करना पड़ेगा। तो फिर आपकी जो स्टेट ड्रग्स लाइसेंसिंग अथॉरिटी होती है वो फिर उसको इशू करता है लाइसेंस। सो आई थिंक ये मेक इन इंडिया जो देता है ये फ्री है क्या, मतलब हाँ इनसे हाँ, आई apply थिंक करने सिंपल का? सिंपल वो है यार, कोई अप्लाई ही नहीं करता, कौन करता है, सब ऐसे ही लगा रहे हैं। तो मेरा काम है बताना कि भी ये इसके लिए करना होता है, अदरवाइज तो सारे ठीक है। प्रोडक्ट्स लगा रहे हैं, कोई देख थोड़ा रहा है। हम्म लगाओ आप भी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बट मैं तो वही बताऊंगी जो सच है। हम्म अदरवाइज लगा लो, कोई कोई पूछता थोड़ा है, हर कोई लगा रहा है मेक इन इंडिया। और इसका तो स्वच्छ भारत का तो वो मतलब गांधी जी का चश्मा तो हर कोई लगा देता है प्रोडक्ट पे। हम्म। हाँ, कोई वो नहीं, कोई भी नहीं पूछ रहा, बट एक्चुअली होता नहीं है, आपको सिंपल परमिशन तो लेनी होती है। नॉर्मली जो स्वच्छ भारत है वो तो वैसे भी सिर्फ म्यूनिसिपैलिटी के लिए बने हैं। जो स्वच्छ हम्म। भारत का लोगो है वो तो है ही म्यूनिसिपैलिटी के लिए, या जो हमारी सिविक बॉडीज हैं या अर्बन लोकल बॉडीज के लिए, वो तो उनके लिए है। बट आप लेके पर आप सिंपल परमिशन लेके कर सकते हो, बट नहीं भी करे लोग सभी लगा रहे हैं, इसमें कोई ऐसी वैसी प्रॉब्लम नहीं है। बट या जो है लीगली वो मैंने जरूर बता दिया कि वैसे लेना होता है। ओके, एनीबडी एल्स? Asmita, you have raised your hand. Yashriba. यस मैम। समीरा जी, जय माता जी। या हाय। मेरा ये क्वेश्चन है कि मेरा एमएसएमई रजिस्टर्ड है ब्रांड, तो अच्छा। वो जो कंपनी का नेम है हम्म। और मैं जो प्रोडक्ट बना रही हूँ उसका हम्म। नाम मैं अलग रख रही हूँ, तो उसका कोई ट्रेडमार्क लेना पड़ेगा? ट्रेडमार्क की कोई जरूरत नहीं, आप कंपनी का नाम अलग रख सकते हो, अपने प्रोडक्ट का नाम अलग रख सकते हो, लेकिन जब आप अपना लेबल लगाओगे जो भी प्रोडक्ट हम्म है उसमें हम्म। नीचे मार्केटेड बाय में आप अपनी कंपनी का नाम लिखोगे। आप लेबल अगर पढ़ोगे ना हाँ किसी भी प्रोडक्ट का, देखो हाँ। लेबल की भी कंप्लायंसेस होती हैं, आपको अपने लेबल पे क्या क्या लिखना है वो भी गाइडलाइंस होती हैं कि ये हम्म चीजें आपको जरूर मेंशन करनी होती हैं। उसमें मार्केटेड बाय आपको जरूर मेंशन करना होता है, डेट ऑफ एक्सपायरी जरूर मेंशन करनी होती है उसकी, जो भी हम्म प्रोडक्ट होती है, चाहे जो भी आप लिखो वो आपको मेंशन करनी होती है। और उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या है वो भी आपको मेंशन करने होते हैं। तो ये आप वहाँ पे मार्केटेड बाय में अपना उसका नाम लिखो, जो एमएसएमई वाला प्रोडक्ट का नाम आप कुछ भी लिख सकते हो। ओके ओके, थैंक हम्म। और ट्रेडमार्क जैसे मैंने पहले भी बताया, इट्स नॉट मैंडेटरी, इट्स जस्ट द brand value, it increases your brand value, that's it, it's a brand building. समीरा जी, किस स्टेज में हमें ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई करना चाहिए, मतलब जब कंपनी हमारी? जब आपको लगे कि आप ग्रो कर रहे हो और आपको लगता है कि मेरा जो लोगो है, मेरा जो प्रोडक्ट का नाम है या ब्रांड नेम है, वो कोई और उसको यूज कर सकता है और उससे फायदा ले सकता है, तब आपको ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई कर देना होता है। अदरवाइज ऐसे कोई एक्चुअली ट्रेडमार्क की मतलब मुझे तो उतनी नीड नहीं समझ में आती, बल्कि ट्रेडमार्क का कभी कभी नुकसान भी हो जाता है, बिकॉज आपको नहीं पता जो आपने ब्रांड नेम लिखा है वो हो सकता है किसी और का हो, और वो लोगों की ओके। लीगल टीम आके आपको वो कर देती है, हम्म। आपको सू कर देती है। तो बिल्कुल। अगर आपका ट्रेडमार्क नेम बिल्कुल आपको मालूम है, यू 100% श्योर कि भाई ये तो किसी और का नहीं है, जैसे किसी के नाम हम्म। से होता है, मान लो आप तरु सिंह लिखते हो, आपका अपना नाम है ये, इसको कोई नहीं, कुछ भी चैलेंज नहीं कोई कर सकता, है ना, ये नाम को, क्योंकि आपका अपना नाम है तरु सिंह। अब किसी और का भी हो तो होता है, आपका नाम तो है ना ये आपके जी आधार जी। कार्ड के हिसाब से, तो वो आपको चैलेंज नहीं कर सकते। बट कोई हम्म और ब्रांड नेम लिख रहे हो तो जस्ट बी श्योर कि आपको पता हो कि भी ये बिल्कुल मेरा ओरिजिनल ब्रांड नेम है। हम्म। कोई भी लोगो भी अगर आप ले रहे हो तो वो आपको पता होना चाहिए कि ओरिजिनल मैंने डिजाइन करवाया है किसी से, और ये वो तब जाके आप ट्रेडमार्क कर दो। अदरवाइज ट्रेडमार्क कोई उतना ज्यादा जरूरी नहीं होता, बट या इफ यू आर रियली वरिड कि आपके ट्रेडमार्क को यूज करके कोई और बिजनेस बेनिफिट ले सकता है, अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो आप ले सकते हो फिर। तो ये ट्रेडमार्क की दोनों अपनी करते आइडेंटिटी हैं को क्या? प्रोटेक्ट करने वाली बात है। देखो सिंपल सी बात है, हम अपने घर पे
ताला लगा रहे हैं क्योंकि हमको डर है कि कोई आ ना जाए चोर, है ना। जरूरी तो नहीं कि कोई आएगा ही, लेकिन हमको डर है कि कोई आ ना जाए, तो आप उसको ताला लगा रहे हो। तो आपकी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट, जरूरी नहीं है कि कोई ले ही, लेकिन आपको लगता है कि नहीं भाई मुझे तो करना है, तो आप तब ले लो। ये समीरा जी, कंपनी नेम और ब्रांड नेम दोनों के अलग अलग मतलब आप कंपनी नेम से अपना वो लोगे ना जीएसटी या जो भी है। ब्रांड नेम तो आप दुनिया आगे कितने ही ब्रांड नेम बनाते रहोगे। ब्रांड नेम एज इन प्रोडक्ट का नाम। आपने अभी क्लीनर का नाम ये रखा है, कल को स्किन केयर करोगे ये उसका कुछ और नाम रखोगे, तो एक इस नाम से अगर ले लिया तो फिर दिक्कत आएगी ना जीएसटी के लिए दूसरे नाम की, है ना। तो आप अपनी कंपनी का नाम अलग रख लो जो भी है, और प्रोडक्ट के नाम आगे अलग अलग रखते रहो। उसमें आप जब जीएसटी लेते हो तो स्पेसिफिकेशन में कोशिश करो बहुत सारी चीजें जोड़ दो, जो भी आपको लगता है कि मैं फ्यूचर में ये करूंगी। ये भी एक पॉइंट है, जब भी आप जीएसटी लें जितनी स्पेसिफिकेशन हो सकती है जोड़ दें, कि मैं ये काम भी आगे करूंगी, ये भी कर सकती हूँ, ये भी जो अभी आप नहीं भी कर रहे, बट यू नो कि इट इज अराउंड दिस सब्जेक्ट, इट्स रेलिवेंट। जो भी स्पेसिफिकेशन है दैट शुड बी रेलिवेंट टू दिस सब्जेक्ट। उसके अंडर जैसे आप अभी हम क्लीनर बना रहे हैं, आप इसी से रिलेटेड स्किन केयर आगे बनाओगे, सो जो नेचुरल हैंडमेड स्किन केयर है वो भी आप डाल सकते हो, आप सोप्स डाल सकते हो, ऐसे करके चीजें डाल सकते हो। वेस्ट मैनेजमेंट को करके आप चीजें डाल सकते हो। सो वेस्ट मैनेजमेंट एक ब्रॉड सब्जेक्ट हो जाता है कि आप वेस्ट से बहुत सारी चीजें बनाओगे, रिसाइकलिंग, रिपर्पसिंग डाल दो आप। तो ये सारी चीजें डालने से आपका काफी चीजें उसमें कवर हो जाती हैं। फिर आप कोई भी आगे प्रोडक्ट ऐड करते रहो, फिर आपको जरूरत नहीं है जीएसटी में कुछ भी एडिशन करने की। और ना ही फिर आपके पास कोई उनसे वो आएगा कि आपने ये कैसे कर दिया। आ जाता है ना, जीएसटी की भी क्वेरी लग के आ जाती है कभी कभी, अगर आपने अपने तो जिसको अभी भी। मैंने जैसे दक्षलीला नाम रखा है, लेकिन मुझे ब्रांड नेम अभी समझ नहीं आ रहा। तो तो आप अभी मैं सिर्फ दक्षलीला दक्षलीला से से जीएसटी ले। हाँ हाँ, तो हाँ, जब वो भी तुम दक्षलीला से अपना, हाँ ट्राई जब भी कर तुम लिया। अपना प्रोडक्ट के नीचे मार्केटेड बाय, उसमें अपनी कंपनी का नाम जो भी दक्षलीला का नाम लिख के उससे ही करना मार्केटिंग। हाँ हाँ। हाँ, और और ब्रांड नेम या मतलब सिर्फ होम केयर या टॉयलेट क्लीनर ही लिख दें, अभी जो भी ऐसा भी चल लिखो, जाएगा ना। हाँ वो जो मर्जी करो ब्रांड नेम। और जो भी अपने आगे भी आप अपना कोई जैसे बिल देते हो या किसी को वो देते हो, इनवॉइस देते हो, तो हाँ आप अपनी कंपनी के नाम की दोगे। हाँ हाँ, तो ठीक। आप ऑनलाइन बना लेते हो, इनवॉइस का एक फॉर्मेट आता है, उसी कंपनी के नाम से ही दोगे फिर वो। और मैम कभी अगर हमारा जो हम ब्रांड नेम रख रहे हैं उसका ट्रेडमार्क लेना है, तो हम कैसे वेरीफाई करेंगे कि किसी और का भी ये है? ऑनलाइन ही सर्च करना है या बिल्कुल। इसमें तो नॉर्मली आप ट्रेडमार्क जब भी लोगे तो खुद से तो जाके नहीं ले पाओगे, आपको सीए की जरूरत पड़ेगी। सो सीए गाइड कर देते हैं, काफी हद तक सीए बता देते हैं कि कैसे आप मतलब इंश्योर कर सकते हो कि आप खुद किसी और का ट्रेडमार्क नहीं चुरा रहे हो। तो कोशिश करो जितना हो सके बी ओरिजिनल, जितना हो सके अपना नाम ऐसे रखो जो कि आपको लगे कि मैंने काफी क्रिएटिव और ओरिजिनल रखा है। हेलो मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग गुड सबको। इवनिंग अस्मिता। या मैम एक्चुअली हाय मुझे एक अस्मिता। हाँ। पूछना था। हम्म। अभी 2 बार जैसे बीजोत्सव और सेवाग्राम बीजोत्सव में मैं गई थी, तो बहुत सारे बड़े बड़े ऐसे लोग हैं जो अपने अंडर 50 से लेकर अभी 450 तक फार्मर्स का बिजनेस, मार्केटिंग और बाकी सब देख रहे हैं। तो उन्होंने मुझे इस बार अप्रोच किया था कि आप वाइट लेबलिंग कर सकते हो क्या? तो हाँ कर मैम सकते जैसे, हो। तो मैम मुझे बस इतना पूछना था कि अगर किसी का प्रोडक्ट मैं वाइट लेबलिंग मीन्स मैं अपने नाम से लिख यानी कर रही हूँ एकदम छोटे स्केल पे, तो मुझे क्या उसके लिए कोई कंप्लायंसेस आ सकते हैं? जब भी आप कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करोगे, और अगर आप किसी भी ऐसे ऑर्गेनाइज ग्रुप के साथ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर रहे हो, आप अगर कुछ नहीं भी लिया होगा तो उनकी कंप्लायंस उनसे मांगेगी कि जीएसटी हमें चाहिए, इसका बिल, जीएसटी बिल चाहिए। आपके पास जीएसटी बिल होगा ही नहीं तो आप कैसे दोगे। तो अगर ओके। तो आप टोटली ये डोनेशन पे चल रहा है तो चलने दो, बट अगर आपकी कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है, सो दे बी नीडिंग, और वो खुद भी एक ऑर्गेनाइज ग्रुप है, सो दे बी नीडिंग जीएसटी नंबर वाला बिल। सो आपको रखना ही पड़ेगा जीएसटी वाला बिल।
ओके मैम। और मैम और एक पूछना था, जैसे मैं सिर्फ कोर बायोएंजाइम पे ही मीन्स काम कर रही हूँ या फिर उसमें एक एक एक्सपेरिमेंट घर पे कर रही हूँ, तो मेरा कोई ऐसे बल्क में या ऐसे रूटीन स्मॉल स्केल बिजनेस नहीं है। जैसे मुझे कोई बल्क में 5 लीटर्स 10 लीटर्स ऐसे बायोएंजाइम मांगता है तो मैं दे देती हूँ और वो जीपे में ही ट्रांजैक्शन होता है। हाँ हाँ तो ऐसे कोई बिल वगैरह नहीं बना है। और हाँ ऐसे कोई बड़ी कंपनी मुझसे बल्क में जैसे 30 लीटर्स या 50 लीटर्स दे रही है, तो मुझे उस ट्रांजैक्शन में भी उन मीन्स ऐसे कुछ कंप्लायंसेस आ सकते हैं क्या? जब तक वो नहीं मांगते आपको जरूरत नहीं है, बट कभी कोई मांगेगा आपसे। ओके ओके। तो मैम अगर इट्स ट्रेडमार्क भी मोर मैं ऑफ कर इट्स हाँ मोर ऑफ देयर रिक्वायरमेंट। ओके ओके मैम, थैंक यू मैम। हाँ एनीबडी? ये और आई थिंक वी आर डन, या वी कैन वाइंड ऑफ। नहीं है, किसी का और कोई क्वेश्चन है तो बाद में भी कर सकते हैं, बट या अभी तक के लिए तो आई थिंक। एंड योगिनी, मुझे प्लीज एक बार वो एसोसिएशन ऑफ वो पूरा हाँ लिख जी, के एक बार टर्मिनोलॉजी भेजना है ना, मैं उसको चेक कर लूंगी एक हाँ बार। जी, मैं आपको भेज देती हूँ वो। हाँ, क्योंकि अगर वो कुछ है यूजफुल तो मैं फिर लेटर वाली अपनी जो कंसेक्टिव हमारी वर्कशॉप्स है, फिर उसको भी मैं ऐड कर लूंगी, अगर लगता है कि वो कुछ ओके है, रिक्वायर्ड है, और वो कुछ इट्स मीनिंगफुल, तो फिर लिख लेंगे उसको भी। ओके ओके जी, ऑल हाँ। राइट, ओके जी। सो आई थिंक वी आर डन, प्रीति जी। Thank you so much, Samira ji, for all your time, your expertise. It's always a pleasure listening to you. इतने डिटेल में सब कुछ समझ में आ गया। Thank you My so much. pleasure as well. Yeah. Thank you And so much. अगर किसी को कोई कुछ क्वेश्चंस हो तो फिर बाद में ग्रुप में डाल दीजिएगा। Most Thank definitely. you, Yeah. Samira ji. Thank Thank you you. so Thank much. you. Thank you, everyone. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you. you. Bye bye. Good Bye-bye. night. Good night. Good night. Good night. स्वाति जी प्रणाम। प्रणाम। चलिए जी, नमस्ते। चलो बाय। बाय बाय।